Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام مسز انجم رضا ہے۔ بچوں السلام علیکم۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کے جی سینئر کا آج ہم اردو کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اردو کا دوسرا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کی حمد پڑھیں گے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ سنتے جائیں اور یاد کرتے جائیں۔ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہو۔ اب آپ سب سے پہلے اس حمد کو سنیے اور یاد کیجیے۔ اور فوارے جگمگ کرتے چاند تارے اور کہا یہ سب ہے تمہارے پیار کا اس کے نہیں شمار پیار کا اس کے نہیں شمار اللہ ہے بس پیار ہی پیار اللہ ہے بس پیار بچوں آج کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اردو کا قاعدہ صفحہ نمبر 14 کھولیں گے۔ آپ اپنی کتاب لیں اور اس کا صفحہ نمبر 14 کھول لیجئے۔ اس میں ہم سب سے پہلے حروف کی عادی شکل دیکھیں گے۔ یہ آپ نے کے جی 1 میں بھی پڑھ چکے ہیں سارا۔ اب آپ کو میں دوبارہ سے پڑھاتی ہوں۔ آپ کو یہ عادی شکل بنانا بھی آتی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیسے اس کو ہم نے لکھنا اور پڑھنا ہے۔ یہ بے اور یہ نیچے اس کے بے کی عادی شکل۔ اس کے بعد پے کی عادی شکل۔ اس کو ہم پورا پے نہیں لکھیں گے، اس کو ہم چھوٹا سا پے بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے تے کی عادی شکل۔ اب ہے ٹے کی عادی شکل۔ اب ہے سے کی عادی شکل۔ اب یہ ساری عادی شکل کو ہم الف کے ساتھ جوڑیں گے۔ الف کے ساتھ جوڑنے کا کیا طریقہ ہے بچوں؟ پہلے ہم چھوٹا سا بے بنا کے اس کو اوپر کی طرف لے جائیں گے اور الف ساتھ جڑ جائے گا۔ یہ کیا بن گیا؟ بے الف با۔ کیا بنا؟ بے الف با۔ بے الف با۔ اب ہم پہ آئیں گے۔ پے کی عادی شکل چھوٹی سی ہم بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے ساتھ اوپر الف لے جائیں گے۔ یہ کیا بن گیا؟ پے الف پا۔ اس میں آپ نے آواز کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح انگلش کے لیٹرز کی ساؤنڈ ہوتی ہے اسی طرح اردو لیٹرز کی بھی آواز ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بے کی آواز ب، پے کی آواز پا۔ اب ہم آ جاتے ہیں تے پر۔ تے چھوٹا سا بنا کے آدھی شکل بنا کے اس کے ساتھ ہم اوپر لے جائیں گے تو الف بن جائے گا۔ اس کو ہم کہیں گے تے الف تا، تے تا۔ اب ہم آ جائیں گے ٹے کی آدھی شکل بنائیں گے۔ اس کو ہم اوپر لے جائیں گے، الف جوڑیں گے اس کے ساتھ، یہ بن جائے گا ٹا ٹا، جیسے ٹماٹر ٹماٹر۔ اب ہم آ جائیں گے سے کو ہاف بنا کے آدھی شکل بنا کر ہم اس کے ساتھ الف کو جوڑ دیں گے۔ یہ کیا بن جائے گا؟ سے الف سا۔ کیا بنا؟ سے الف سا۔ اب اس کو پھر شروع سے پڑھیں۔ بے الف با، پے الف پا، تے الف تا، ٹے الف ٹا، سے الف سا۔ کیا بنا؟ با پا تا ٹا سا۔
कैसे बना? बे की आवाज ब, तो बा, प, पा, त, ता, ट, टा, स, सा। अब बच्चों आप देखें ये नीचे कौन सा लफ्ज बना हुआ है? अलिफ मद आ बे आप। मैंने आपको कहा था ना कि अलिफ मद आ की आवाज लंबी होती है थोड़ी सी, तो इसको हम पढ़ेंगे आब। आप का मतलब पानी। आपको पता है आप का मतलब क्या होता है? आप का मतलब होता है पानी, ठीक है। और दूसरा हमारा लफ्ज जो है वो है आप। दूसरा लफ्ज हमारा है आप। आप में पहले क्या आ रहा है? आ का मतलब क्या हुआ? अलिफ मद आ, प, पे, अलिफ मद आ, पे, आप हम किस लिए यूज करते हैं, किस लिए बोलते हैं? जब हम किसी से बात करते हैं तो जब बात तमीज से करनी होती है तो हम आप से बात करते हैं, और कोई हम नहीं यूज करते लफ्ज, आप कहते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे बहुत तमीजदार हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, लिहाजा आप जब भी किसी से बात करें तो आप बोल के बात करेंगे, ठीक है बच्चों? ये समझ आ गया आपको? पहले है आप, ब, आपका मतलब पानी, और दूसरा लफ्ज है आप, यानी हम किसी से जब बात करते हैं सामने तो आप ऐसे हैं, आप कैसे हैं, इसलिए हम ये आप यूज करते हैं। अब हम आते हैं इससे नीचे वाले अल्फाज पे। ये क्या लिखा हुआ है? बे के साथ क्या है? अलिफ। बे की आवाज के ब, जब अलिफ जुड़ गया तो क्या बना? बा, प। ये अब आप आवाज भी सब हरूफ की चेक करते जाएं। बाप, बा, पहले आप बे बनाएंगे, उसके साथ आप अलिफ जोड़ेंगे, बे के साथ आप अलिफ जोड़ेंगे और उसके साथ आप पे बनाएंगे, तो ये क्या बन गया? बाप। बाप किसको कहते हैं? अपने अब्बू को आप लोग कहते हैं, लेकिन आप बाप नहीं कहते, आप अब्बू कहते हैं या बाबा कहते हैं, यानी फादर को उर्दू में बाप कहते हैं। अब क्या आ गया? ये बे अलिफ बा, बा लंबा करके थोड़ा सा इसको बे को अलिफ से जोड़े, बा बन गया। फिर क्या है? त, बात, जैसे आप किसी से बात करें, बात। तीसरा लफ्ज देखें, पा। अब क्या आवाज आ रही है? पे के साथ अलिफ, पा। फिर आगे क्या आ रहा है? त, पात। अगले हर लफ्ज पर आए, बा। बे के साथ क्या है? अलिफ, बा, ट। आगे क्या है? ट, टे, बाट। बाट ये सामने बने हुए भी हैं, आप देखें, जिससे वजन करते हैं, इनको हम बाट कहते हैं। जैसे 1 किलो 2 किलो, उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो उसको हम बाट कहते हैं। बाट यूज करते हैं जिससे पता चलता है किसी चीज का वजन कितना है। अब फिर से ये अल्फाज आप दोहराएं। बे अलिफ बा, पे, बाप। बे अलिफ बा, ते, बात। बे अलिफ, पे अलिफ पा, ते, पात। बे अलिफ बा, ते, बाट। आज हम सिर्फ यही अल्फाज पढ़ेंगे, इससे नीचे के अल्फाज हम अपने अगले सबक में पढ़ेंगे। आपने इन अल्फाज को कॉपी में लिखना है, साफ साफ करके लिखना है और आवाज के साथ लिखना है। अब हम अगला सबक शुरू करने, अगला किताब पढ़ने से पहले हम इसको एक दफा दोहरा लेते हैं। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा। ये आपने इमला के लिए भी याद करना है, इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में लिखें और आप आवाज के साथ लिखने की कोशिश करें ताकि आपको इमला के लिए आसानी हो जाएगी। अब ये वाले अल्फाज देखें, ये इमला में शामिल नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने और लिखने आने चाहिए। अलिफ मद आ बे आब, अलिफ मद आ पे आप,
बे अलिफ बा पे बाप, बे अलिफ बा ते बात, बे अलिफ बा ते बात, बे अलिफ बा टे बाट। अब ये आधी शक्ल को अच्छी तरह से देख लें, बे और उसकी आधी शक्ल, पे और उसकी आधी शक्ल, ते की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल, से की आधी शक्ल। इनको आपने छोटा करके लिखना है, पूरा बे पूरा पे नहीं बनाना, छोटा करके उसके नीचे नुक्ते डालते जाए। अब हम उर्दू की अमली किताब सफ़ा नंबर 3 खोलेंगे। उर्दू इसमें आप देखें ये किस चीज की तस्वीर बनी हुई है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये दरख्त का पत्ता है, इसको क्या कहते हैं? पत्ता। इंग्लिश में इसको कहते हैं लीफ, उर्दू में इसको कहते हैं पत्ता। इसमें पहले आवाज किसकी आ रही है? प, पत्ता। तो हम पे लिखेंगे, पे से पत्ता। क्या बना? पे से पत्ता। पत्ते क्या किससे शुरू हो रहा है? पे से। तो आपने यहाँ पर पे लिखना है। अब हम आएंगे दूसरी तस्वीर की तरफ। ये क्या बना हुआ है? चाकू। ये क्या है? चाकू। इसको क्या कहते हैं? चाकू। छुरी भी कहते हैं, चाकू भी कहते हैं। चाकू। इसको हम किससे शुरू करेंगे? चे से। तो आपने तस्वीर का पहला हर्फ लिखना है, चे से चाकू, पे से पत्ता, चे से चाकू। अब हम आते हैं तीसरी तस्वीर की तरफ। ये क्या बनी हुई है? पतंग। पतंग को आप क्या कहते हैं? काइट। आप लोगों को काइट पता है, लेकिन इसको पतंग कहते हैं उर्दू में। पतंग किससे शुरू होता है? पतंग। पे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पे से पतंग। अब आ गए हम चौथी पिक्चर की तरफ, चौथी तस्वीर की तरफ। इसको हम क्या कहते हैं? हुक्का। हुक्का। इसमें हे की आवाज आ रही है, तो हम यहाँ पर हे बनाएंगे, हे से हुक्का। लेकिन जब आपने हे लिखना है तो याद रखना है आधा लाइन के ऊपर हो, आधा लाइन के नीचे हो, आधा लाइन के ऊपर हो, आधा नीचे हो। अब ये पांचवी तस्वीर हमारी आ गई। ये क्या बना हुआ है? बत्तख। इसको क्या कहते हैं? बत्तख। आप लोगों को तो डक पता होगी, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें उर्दू आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में? बत्तख। तो ये किससे शुरू होगा? बत्तख। बल्ला। ये अब हमारी छठी तस्वीर आ गई, यानी छठी तस्वीर। ये क्या बना हुआ है? बल्ला। जब क्रिकेट खेलते हैं तो इस बल्ले से खेलते हैं, तो इसको हम किससे वो करेंगे शुरू? बल्ला। ये क्या बना हुआ है? तितली। 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 हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहला हर्फ ते। अब हम अगली तस्वीर की तरफ आते हैं। ये क्या बना हुआ है? ये किसकी तस्वीर है? लड़की की। ये कौन है? लड़की यानी गर्ल। इसको हम किससे लिखेंगे? लाम से, लड़की। अब ये अगली तस्वीर पर आ जाइए। ये क्या बना हुआ है? ऐनक। ऐनक किसको कहते हैं? ग्लासेस को, जो आंखों के ऊपर लगाई जाती है, जिससे हम देखते हैं, धूप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम किससे शुरू करते हैं? ऐन। ऐनक। ऐन की आवाज आ रही है। अब ये क्या पिक्चर है? नेक्स्ट तस्वीर किस चीज की है? फ्रॉक। लड़कियां जो पहनती हैं लिबास, फ्रॉक, उसको हम किससे शुरू करते हैं? फ्रॉक। अब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। पत्ता, पे पत्ता, चाकू, चाकू, पतंग, पे पतंग, हे हुक्का, बे बत्तख, 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 बे बत्तख
बे बल्ला, ते तितली, लाम लड़की, ऐन ऐनक, फे फ्रॉक, फे फ्रॉक। अब आप अगले सफ़े पर आ जाएं बच्चों, सफ़ा नंबर 4। शाबाश। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, बे से किसकी तस्वीर बनानी है? अभी मैंने आपको बताया बे से क्या होता है, बल्ला। आप बल्ला बनाएं और उसमें कलर करें। और अगर आपको बल्ला नहीं बनाना आता तो आप बल्ले की तस्वीर काट कर इस पर पेस्ट कर दें, इस पर लगा दें। ठीक है। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप किसी किताब में से कहीं से आप एक तस्वीर बल्ले की लेकर इस पर लगा दें, उसमें अच्छे से कलर कर लें। अब आप देखें बच्चों, ये क्या है, तितली। ते से क्या होता है, तितली। तितली की तस्वीर लें, उसको काटें, काट कर आप यहाँ पर लगा दें। अगर आप तितली बना सकते हैं तो आप तितली बनाएं और उसमें अच्छा सा कलर करें। अब ये पे से पत्ता, पत्ते को आपने ड्रॉ करना है, बनाना है। अगर आपसे नहीं बनाया जाता, आप उसको काटें किसी किताब में से, किसी चीज में से, उसको आप यहाँ लगा दें, पेस्ट कर दें। फिर आपने टे से क्या बनाना है, टमाटर। टोपी भी बना सकते हैं, लेकिन आप टमाटर बनाना चाहे तो आप टमाटर बना दें और उसमें अच्छा सा कलर कर दें। बच्चों ये आज का आपका होमवर्क है, सफ़ा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 4। इस काम को आप अच्छी तरह से करके, साफ सुथरा करके अपनी टीचर्स को अपने ग्रुप में भेज दें। वो आपके काम को चेक करेंगी, आपको बहुत सारे स्टार देंगी, बहुत शाबाश देंगी। और उसके बाद हम अपना इंशाल्लाह अगला सबक शुरू नेक्स्ट उसमें करेंगे। अब आप हम्द को, इस नज़म को दोबारा से सुनिए और याद करें। शाबाश। आज बनाए प्यारे प्यारे तितली जुगनू और फवारे, जगमग करते चांद तारे, और कहा ये सब है तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। आए प्यारे प्यारे तितली जुगनू और फवारे, जगमग करते चांद तारे, और कहा ये सब है तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। अच्छा बच्चों, आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम अगले सबक तक के लिए इंतज़ार करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। अगले सबक में दोबारा मिलते हैं।